Good morning, students. Today we are going to start lecture 5th on supply chain and logistics management. I am an assistant professor of MBA department, IIMT College of Engineering. Let's start lecture number 5 on supply chain and logistics management, in which we will study about process view of supply chain management, which will be continued from lecture 4, and key issues in supply chain management. In process view of supply chain management, we have studied about customer order cycle and replacement cycle. Now, today we will discuss about manufacturing cycle and procurement cycle in the process view of supply chain management, and then we will discuss about key issues in supply chain management. So let's start and continue process view of supply chain manufacturing cycle. In this process, the main parties that are involved are distributors with the manufacturer and or retailers with manufacturers. In addition, includes replenishing distributors inventory. This process involves manufacturing cycles में 4 process involved होते हैं. First one, orders that arrive from the distributor, retailer or customer. ये ऑर्डर आता है कहाँ से? डिस्ट्रीब्यूटर से, रिटेलर या कस्टमर से. उसका शेड्यूलिंग द प्रोडक्शन हाउस. प्रोडक्शन हाउस उनका शेड्यूलिंग कैसे करेंगे? मेंटेनिंग द मैन्युफैक्चरिंग एंड शिपिंग प्लेसमेंट. जो मैन्युफैक्चरिंग एंड शिपिंग होगी उसका मेंटेनिंग. एंड ऑर्डर्स रिसीविंग एट द कस्टमर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर. दी आर डिस्क्राइब्ड इन डिटेल्स बिलो. First one is order arrival. Second one is production scheduling. The manufacturer order arrival is identical. So order arrival perspective is no time in the process. Distributors and warehouses set proper replacement time, then convey it to the manufacturer. While it may also happen, customers and retailers need replenishment and order it directly from the manufacturer. Although in some cases there are manufacturer produces to stock a finished product warehouse. ये क्या होता है कि मैन्युफैक्चर आइडेंटिकल टू ऑर्डर रेस्पेक्टिव में कोई टाइम नहीं होता, तो इस प्रोसेस को डिस्ट्रीब्यूटर और वेयर हाउसेस मिलकर एक प्रॉपर टाइम मैनेज करते हैं और मैन्युफैक्चर को बताते हैं. उससे कस्टमर एंड रिटेलर्स मैन्युफैक्चर से डायरेक्ट ले सकते हैं. और कुछ केसेस में देयर आर मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स इन टू स्टॉक अ फिनिश्ड प्रोडक्ट वेयर हाउस. कुछ केसेस में मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस करते हैं स्टॉक अ फिनिश्ड प्रोडक्ट वेयर हाउस. कुछ मैन्युफैक्चर फिनिश्ड प्रोडक्ट वेयर हाउसेस तक स्टॉक फिनिश करते हैं. दूसरा है प्रोडक्शन शेड्यूलिंग. In the production scheduling process, the producer allocate orders into the production plan. Production scheduling process में क्या है? प्रोड्यूसर जो है ऑर्डर्स प्रोडक्शन प्लान में ऑर्डर्स को allocate करता है, which they plan about the quantity and quality of the product that should be decided based on the orders and requirements. और जो भी ऑर्डर्स और ऑर्डर्स आए हैं, जो भी उनकी ऑर्डर्स रिक्वायरमेंट है, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी चेक होते हुए उसका the production है उसका शेड्यूलिंग होगा. The main purpose of this stage to decide maximize order and profits while keeping the cost minimum. तो सभी सप्लाई चेन मैनेजमेंट शुरू से बताया है जो हमारा ये पर्पज है मेन कि ऑर्डर्स जितने ज़्यादा मैक्सिमम ऑर्डर्स होंगे उतने हमारा क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमम होगा. और उसको हमें मिनिमम कॉस्ट में उसे शेड्यूल करना है. जो प्रोडक्शन शेड्यूल है वो मिनिमम कॉस्ट में शेड्यूल हो ताकि हमें प्रॉफिट मैक्सिमम से मैक्सिमम. मैन्युफैक्चरिंग एंड शिपिंग. इन दिस फेज मैन्युफैक्चरिंग एंड शिपिंग द मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल ऑफ द प्रोडक्शन. जो भी प्रोडक्शन के हिसाब से शेड्यूल हो तो मैन्युफैक्चरर जो भी है उसके हिसाब से मैन्युफैक्चर करेगा उसका और शिप करेगा. जो भी प्रोडक्शन शेड्यूल है जिस हिसाब से जहाँ भेजना है जैसे भेजना है उसके हिसाब से मैन्युफैक्चरर उसको मैन्युफैक्चरिंग करेगा और शिप करेगा. And of the product, and in the phase of shipment, the product is shipped to its
promised customer according to the promised due date and keeping the quality high and low cost. The customer in this case could be the retailer or the producer. तो जो मैन्युफैक्चरिंग शेड्यूल का प्रोसीजर, प्रोडक्शन शेड्यूल के बाद जो भी आएगा उसके हिसाब से उसे मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा और उसके बाद शिफ्ट कर दिया जाएगा। हम कोई ऑर्डर करते हैं अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग से, तो जो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, कंपनी को ऑर्डर देते हैं। वो ऑर्डर जहाँ से भी आपके पास आना है, नियरेस्ट एरिया जहाँ पे होगा, जहाँ पर उनको वेयर हाउस से होगा, वहाँ से वो आपके होम पर डिलीवरी हो जाएगा, रिसीविंग। The products are received by its customer in the phase of this cycle. The inventories are recorded, updated, and the other process is updated. इस प्रोसेस में क्या है, रिसीव कस्टमर क्या है, रिसीव कर लेगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट करने के बाद जो भी इन्वेंट्रीज हैं उसे अपडेट किया जाएगा, कितना प्रोडक्ट बचा है, कितना गया है, कितनी की और नीड है। वो फिर इन्वेंट्री अपडेट होने के बाद उसे फिर प्रोडक्ट को मंगा के या डिस्ट्रीब्यूट करके उसे बैलेंस किया जाएगा। प्रोक्योरमेंट साइकिल, प्रोक्योरमेंट साइकिल को ये जो साइकिल हम इससे समझ लेते हैं, इस साइकिल से। प्रोक्योरमेंट साइकिल में क्या है, पहला क्या है, ऑर्डर बेस्ड ऑन मैन्युफैक्चरर प्रोडक्शन शेड्यूल और सप्लायर स्टॉकिंग लिस्ट। जैसे उसमें क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर से, कस्टमर से, जिसमें मैन्युफैक्चरर से है। सेम चीज़ें हैं कि वहाँ क्या था, डिस्ट्रीब्यूटर था, कस्टमर था या रिटेलर था, यहाँ पे क्या है, मैन्युफैक्चरर है। सेकेंड है सप्लायर प्रोडक्शन शेड्यूल, जो सप्लायर है उसका प्रोडक्शन शेड्यूल सेम प्रोसेस में जैसे पता है, सेम चीज़ें में होगा। प्रोडक्शन शेड्यूल इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन क्वांटिटी, गोल इज टू मैक्सिमाइज ऑर्डर फुलफिलमेंट ऑन टाइम एंड कंट्रोल कॉस्ट। कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड शिपिंग, कंपोनेंट्स आर मेड एंड शिप्ड टू द मैन्युफैक्चरर। सेम चीज़ें हैं, बस इसमें क्या है, इसमें मैन्युफैक्चर प्रोक्योरमेंट साइकिल में आ गया है, रिसीविंग एंड मैन्युफैक्चर। वहाँ पे कस्टमर था, यहाँ पे क्या है, मैन्युफैक्चर। Now second one is push and pull view. It has been discussed earlier that all the process of supply chain falls into two processes. The first was the cycle view that we have discussed. Cycle view में क्या है, customer order, replacement, manufacturing and procurement cycle. Now second one is push and pull view. Now this one is the push and pull view of the supply chain process, highly productive against many perspectives of actual supply chain. These supply chain processes are actually believed to give the best as supply chain management struggles. In the full process of supply chain process, the order is implemented according to the demand of the customer. जो फुल प्रोसेस है, फुल प्रोसेस में क्या है, डिमांड जो भी कस्टमर्स की डिमांड है, रिक्वायरमेंट, उसके हिसाब से ऑर्डर्स को उसको ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया जाता है। जितनी डिमांड है उसके हिसाब से इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। लेकिन इन कुछ प्रोसेस में क्या है, अकॉर्डिंग टू फोरकास्टिंग के बेस पे हम, मतलब उसमें डिमांड हमें पता नहीं होता, एक आइडिया लगा है कि लगभग कितना डिमांड होगा, उसके हिसाब से हम उस प्रोसेस में ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करते हैं। Okay, in the full process of supply chain process, the order is implemented according to the demand of the customer. While in the push process, the order is executed according to the anticipation of the orders of the customer. In other words, the full process execution, the demand of the customer is not known, but in the implementation of the push process, demand of the customer is actually not known, and is forecasted in many perspectives immediately in supply things from one chain to another. मतलब कुछ प्रोसेस है उसमें आपको एक्चुअल डिमांड नहीं पता है, लेकिन वो फोरकास्टिंग के बेस पे एक चेन से अदर चेन पे उसे इमीडिएटली फोरकास्ट के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट किया जाता है। फुल प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज द हैस्टी प्रोसेस बिकॉज ए रिस्पॉन्स इज मेड अकॉर्डिंग टू द कस्टमर डिमांड, वाइल द पुश प्रोसेस दो प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी, मतलब इसके अंदर आपको हमेशा प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग वर्क करना होगा उस प्रोसेस में, और स्ट्रेटजी उसमें रीड करते हुए कितनी डिमांड है, कितनी हो सकती है, क्या है वो फुल प्रोसेस, जबकि फुल प्रोसेस में आपको चीज़ें पहले से पता होती है। इन एडिशन दिस पुश या फुल स्ट्रेटजी separates push process from the full process in a supply chain. It is useful in making a strategic decision that may affect the decision of supply chain in no time. Moreover, the view process
view forces actual perspectives that are globalized, spreading with perfect combination in no time bounded way. इसके अंदर जो हमारा the view of forces कोई टाइम बाउंडेड में these functions are related to the customer's order. ठीक है. Now we will discuss the key issues in supply chain management. Some key issues are in supply chain. First one is globalization. Globalization presents several critical supply chain management challenges to the enterprises and organizations. जो पूरा ग्लोबलाइजेशन है किसी प्रोडक्ट का चलना है उसके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस हैं एंटरप्राइज के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन में. फर्स्ट टू रिड्यूस कॉस्ट कंप्लीट करना तो कॉस्ट रिड्यूस करना होगा क्वालिटी इंप्रूव करनी होगी उससे हमारा जो है डिमांड ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ेगा तो हमारा प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा एंड धीरे धीरे कॉस्ट जो है हमारा reduce होगा. First to reduce cost across the supply chain, enterprises are moving manufacturing operations to countries which offer lower labor cost, lower taxes, and or lower cost of transport or raw materials. For some companies, outsourcing the production involves not only a single country but several countries for different parts of their products. सबसे पहले क्या था रिड्यूस द कॉस्ट अक्रॉस द सप्लाई चेन मूविंग मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस टू कंट्रीज. डिफरेंट कंट्रीज में अपने वो लगाना है तो हम पहले उस कंट्रीज में लगाएंगे जहाँ हमें लगेगा कि डिमांड हमारी ज़्यादा होगी जहाँ लेबर कॉस्ट कम होगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगा टैक्सेस कम होंगे. जैसे पहले टाटा नैनो मार्क पहले वेस्ट बंगाल में करना था प्रोड्यूस लेकिन वहाँ से हट के दूसरी जगह जाना पड़ा क्योंकि वो जो क्राइटेरिया था जो भी उसको लगाने का लैंड हो या और टैक्सेस है वो उसमें फिट नहीं हुआ तो चेंज करना पड़ा. तो ये सब चेंज करना होगा हमें ताकि हमारी जो कॉस्ट है वो प्रोडक्ट की वो मिनिमम है. हाउएवर outsourcing not only extend the production process globally but also the complete procurement network. Having suppliers in different geographic locations complicates the supply chain. Companies will have to deal with coordinate and collaborate with parties across borders regarding manufacturing, storage and logistics. The companies होंगे जो हमारे डिफरेंट बॉर्डर्स हैं कंट्रीज की उसे कोलैबोरेट करना होगा कोऑर्डिनेट करना होगा स्टोरेज मैन्युफैक्चरिंग के लिए लॉजिस्टिक्स के लिए चीज़ों के लिए कोलैबोरेट हमें करना होगा ताकि हमारी स्थिति आगे चल के हैक्टिक ना हो कोई प्रॉब्लम. फर्दरमोर दे हैव टू एक्सटेंड ऑन maintain fast delivery lead time to customers who want to receive their products or schedule despite increased complexity in the manufacturer supply chain. जो लीड टाइम है कस्टमर के लिए उसमें जो भी जिस टाइम तो कस्टमर चाहता है उस टाइम पे प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए सब चीज़ें हमें करनी होंगी. फाइनली दे आल्सो हैव टू मेंटेन द रियल टाइम विजिबिलिटी इन देयर प्रोडक्शन साइकिल फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू फिनिश गुड्स. जो भी रॉ मटेरियल से लेके प्रोडक्ट के फिनिश होने तक जितनी भी जो भी रियल टाइम विजिबिलिटी है वो मेंटेन करना होगा. जैसा ना हो कि मोर देन इनफ टाइम लग रहा है उसके अंदर तो कस्टमर के पास प्रोडक्ट आपको टाइम में नहीं पहुँचेगा तो फिर नेगेटिव फीडबैक आएगा. फॉर एग्जाम्पल मेनी मैन्युफैक्चरर इन एशिया स्टिल हैंडल ट्रेडिंग पैरामीटर्स कम्युनिकेशन बाय फैक्स एंड इवन वाइल सप्लायर्स इन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप हैव यूटिलाइज्ड EDI फॉर डिकेड्स. अभी भी एशिया में बहुत सारी मैन्युफैक्चरर हैं जो ईमेल और फैक्स यूज करें जो कि नॉर्थ अमेरिका EDI हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज. इससे क्या होता है हमारे जितने भी डेटा हैं जो भी हमारे कंपनीज में सप्लाई चेन में जितने भी लोग हैं उनसे इमीडिएटली वो ट्रांसफर हो जाता है. एज टेक्नोलॉजी मेजर सप्लायर्स इन इमर्जिंग मार्केट्स में skip EDI altogether and move to a more modern API driven approach to communication just as developing countries have skipped landlines in favor of cell phones.
जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, सप्लायर्स इमर्जिंग मार्केट में एपीआई को छोड़ कर एपीआई पे जा सकते हैं. सप्लाई चेन practitioners need to ask if their enterprise's technology is prepared to handle these diverse forms of communication, that right from globalization, and build a business case to stay prepared. Fast changing market. Nowadays, market changing very fastly. इसके अकॉर्डिंग आपको अपने प्रोडक्ट्स को अपने और चीज़ों को मेंटेन करना होगा ताकि विद इन टाइम वो आप चीज़ें कंप्लीट कर सकें. According to EBCA, consumer behavior is affected by cultural, social, personal, and psychological factors that are quickly being changed by technology and globalization. EBCA के अनुसार जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो बहुत कई चीज़ डिपेंड करता है. कल्चर हो, सोशल हो, पर्सनल हो, साइकोलॉजिकल फैक्टर हो, जो कि टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन से बहुत जल्दी चेंज हो रहे हैं. सोशल मीडिया इज क्रिएटिंग न्यू pressure for consumers to conform while putting demands on the enterprises to utilize these sources of information to respond to changing requests in order to stay interesting and relevant. सोशल मीडिया के थ्रू जो चीज़ें अभी बहुत तेज़ी से लोगों के पास पहुँच रही है, तो इससे जो कंज्यूमर है न्यू प्रेशर फॉर कंज्यूमर टू कंफर्म while putting प्रेशर ऑन एंटरप्राइज. एंटरप्राइज को प्रेशर आता है ताकि वो अपनी चीज़ों को इंटरेस्टिंग और रिलेवेंट बनाए रखें. Like globalization, the fast changing consumer market also brings with it supply chain management challenges. First, products have shorter life cycles due to rapidly changing market demand. मार्केट में बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, इसलिए जो साइकिल है वो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल वो कम होती जा रही है. जैसे मान लीजिए मोबाइल है, हमने आज मोबाइल लिया, विद इन 15 days और 1 month नया मोबाइल आ गया, ठीक है. तो उनकी जो है डिमांड्स नई नई चीज़ों की बढ़ रही हैं, तो जो प्रोडक्ट है उसका लाइफ साइकिल कम हो रहा है. एंटरप्राइज आर अंडर प्रेशर टू कीप अप विद द लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड इनोवेट बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स. एंटरप्राइज को न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना होगा वाइल कीपिंग देयर टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लो. मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वो भी लो रखना है, बिकॉज दे अंडरस्टैंड दैट ट्रेंड्स विल नॉट लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम. बहुत चल रहा है. दिस ऑल्सो डिमांड्स द फ्लेक्सिबल सप्लाई चेन दैट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग अदर प्रोडक्ट्स एंड फॉर फ्यूचर. कस्टमर को जो चीज़ें हैं उसकी लाइफ साइकिल कम रखनी है, तो इसलिए जो है वो कॉस्ट पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देता है. तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इससे कम होगा तो आप प्रोडक्ट की जो सेल है वो ज़्यादा होगी. Second, aside from the new products, companies also need to constantly update product features. Enhancing product features requires enterprises to redesign their supply chain to accommodate product changes. न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के अलावा जो कंपनीज है, नई नई टेक्नोलॉजीज है, उनको हमेशा अपडेट करते रहना है. जैसे मान लीजिए हमारा मोबाइल में डे बाई डे कैमरा अपडेशन, रैम, रोम, ये सब चीज़ें अपडेट होती रहती है. जो है आपकी लुक वाइज सब चीज़ें अपडेट होती हैं. ये क्योंकि बहुत तेज़ी से मार्केट चेंज हो रहा है, तो उसमें चीज़ें हमेशा अपडेट रहेंगी, तो ही आपको उससे बेनिफिट मिल रहा है. फाइनली, इनोवेशन प्रेजेंट्स अ चैलेंज इन द फोरकास्टिंग डिमांड ऑफ फॉर न्यू प्रोडक्ट. न्यू प्रोडक्ट्स को फोरकास्ट करना पड़ेगा कि भाई न्यू प्रोडक्ट हम लॉन्च करें, लगभग कितना हम लॉन्च करें, ताकि जो है हमारा विद इन टाइम वो कंप्लीट हो जाए. कॉन्स्टेंट इनोवेशन नेसेसिटेड बाई फास्ट चेंजिंग मार्केट्स ऑल्सो मीन्स enterprises will constantly have to anticipate demand for new products. Enterprises need to create and maintain the allied supply chain that can respond well to spikes and dips in demand and product needs. जो भी सप्लाई चेन है उसको मेंटेन करना पड़ेगा ताकि जो है डिमांड और प्रोडक्ट्स जो नीड्स है वो विद इन टाइम सप्लाई चेन के थ्रू. Companies should be asking if they have all the data needed to make planning decisions to address challenges created by fast changing markets. क्योंकि कंपनी के पास सारा डेटा होना चाहिए, तो प्लानिंग डिसीजन के लिए एड्रेस चैलेंजेस को क्रिएटेड है उसे एड्रेस करने के लिए बाई फास्ट चेंजिंग मार्केट. फॉर एग्जाम्पल, वी स्टार्टेड इफ स्टेटेड लीड टाइम्स फ्रॉम सप्लायर्स आर लॉन्गर देन एक्चुअल टाइम, दिस विल लीड टू हायर इन्वेंट्री लेवल्स than are actually required and affect costly decision around network planning and optimization. मान लीजिए सप्लायर्स का क्या है,
जो लीड टाइम है वो एक्चुअल टाइम से बहुत ज़्यादा है, तो इन्वेंट्री को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, इससे कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा और दैट बात है उसके पास भी, कस्टमर के पास भी प्रोडक्ट टाइमली नहीं पहुंचेगा, तो वहाँ भी कॉस्ट होता है। ओमनी चैनल रिटेल हैज क्रिएटेड flows of sales data that have to be blended and harmonized to detect demand signals early in the planning process as well. Quality and compliance. Aside from influencing consumer behavior, social media highlights the importance of having high quality products. According to research conducted by eMarketer, region reviews, comments, and feedback is the top social media activity that influence online shopping behavior. Furthermore, social media has not only raised consumers' expectation of product quality but has also amplified the damages caused by product details. क्वालिटी और क्वालिटी आपको मेंटेन करनी होगी कि सोशल मीडिया और अन्य चीज़ों से भी लोगों को प्रोडक्ट क्वालिटी के बारे में बताया जा रहा है और जो है तो उसमें डैमेजेज है, कोई दिक्कत है तो वो भी प्रोडक्ट प्रोडक्ट के बारे में बताया जा रहा है ताकि वो चीज़ें और इम्प्रूव कर सको, आप इम्प्रूव करके वो कस्टमर के पास पहुँचे। Thus, enterprises are under increasing pressure to create high quality products. इससे क्या होता है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स क्रिएट करने के लिए प्रेशर होता है एंड टू क्रिएट देम कंसिस्टेंटली, लगातार ही नहीं कि एक बार आपने बना दिया फिर अगला प्रोडक्ट बिना क्वालिटी का बना दिया तो नहीं चल पाएगा। दे कैन डू सो बाय एडजस्टिंग क्वालिटी एट एवरी लेवल ऑफ द सप्लाई चेन सच एज रॉ मटेरियल। आपको रॉ मटेरियल से स्टार्ट करके प्रोक्योरमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स सब में आपको क्वालिटी को मेंटेन करना होगा, तभी ऑल प्रोडक्ट की फाइनल क्वालिटी मेंटेन होगा। प्रोडक्ट क्वालिटी ऑफन गोज हैंड इन हैंड with compliance. Enterprises need to ensure that they meet local and international regulatory standards in manufacturing, packaging, handling, and shipping of their products and product handling. एंटरप्राइज होने इंश्योर कि लोकल और इंटरनेशनल वो भी है, उसके हिसाब से आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग पैकिंग सब उसके हिसाब से होनी चाहिए ताकि आगे चल के कोई और प्रोडक्ट की क्वालिटी भी उस हिसाब से होनी चाहिए। जैसे बीच में आया था ना मैगी बंद हो गई, जो क्वालिटी है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम थी तो उन्होंने उस चीज़ को मेंटेन नहीं किया, इसको उन्हें बंद करके फिर रिलॉन्च करना पड़ा, वो चीज़ें सही करके, तो वो पहले से सेवन तो आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। Aside from passing quality control and safety tests, enterprises are also required to prepare compliance documents such as permitted, सब चीज़ ये परमिट लाइसेंस को लेना होता है, वो नहीं होगा फिर आगे चल के चीज़ों में प्रॉब्लम होगी। Emerging capabilities like IoT, smart packaging, and blockchain are changing how compliance is enforced and measured. However, these innovations will produce streams of data that cannot be handled with the enterprise technology of the past 20 years. Managers should carefully consider where these investments make sense and asking IT if the business is utilizing platform based on microservice and big data to support these heavy data। ये सब जो डेटा जो हैंडलिंग है वो सब आईटी सेल्फ के थ्रू से कंट्रोल करना होगा। फॉर टुडे दिस इज एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अनदर टॉपिक based on supply chain and logistics management. Thank you. Thank you.